Hello everyone, welcome back to another tutorial video on your favorite platform, that's your biome classes. So today we are going to discuss about the lactose operon, and formally this lactose operon it's also called as your lac operon. Okay, so इसको बहुत आसान टॉपिक है, इसको उतना टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। हम है यहाँ पे डिस्कस करने के लिए, और वीडियो अच्छे लगे तो पूरा कंटिन्यू करो और अपना दोस्त को भी शेयर करो, फॉरवर्ड करो। So let's start with the lac operon first. Now generally what we know, हम लोग को क्या पता है, जो प्रोकैरियोटिक्स होता है, प्रोकैरियोटिक्स के अंदर में जो जीन का रेगुलेशंस होता है, that's very much complicated. So in the case of the prokaryotes, the gene control is regulated by a very simple thing that's called as your lac operon. But in the case of the eukaryotes, so we have the different way, we have the transcriptions, translations, many other things we have for the gene expressions. But especially in the case of the prokaryotes, their gene expression it's very difficult, and generally their gene expressions is controlled by the different methods, and that is nothing but our the different parts, that's it's your lac operon. So let's discuss this lac operon one by one. Okay, so let's first discuss what do we understand by the method of our lac operon. So what is the operon? Operon is the part of genetic material. जेनेटिक मटेरियल, हम लोग को जेनेटिक मटेरियल कहां पे मिलता है? डेफिनेटली हम लोग को मिलेगा डीएनए में, राइट? सो दैट्स व्हाई द जेनेटिक मटेरियल इट्स आल्सो पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट. ओके, इसका मतलब क्या है? हम लोग एक डीएनए का पार्ट देखेंगे और डीएनए का पार्ट के अंदर में कुछ यूनिट है, कुछ जीन का सेगमेंट है, जो जीन का सेगमेंट एक साथ में एक सिस्टम के द्वारा फॉलो होगा, और उसका जो एक्टिविटी होगा वो एक्टिविटी किसी चीज का अंडर में होगा. ओके, सो दैट्स अ वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन बाय आवर operon. Okay, or by what do we mean by the operon? By these definitions we can understand. Now this operon method, who first discovered it? This operon method first discovered by Jacob and Monod, and from where they have discovered it, they have discovered it from the E. coli. So what is the E. coli? E. coli is the Escherichia coli, and it is a prokaryotes. Okay, so पहले ही हम बोल दिए थे तुम लोगों को, जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन इट इज अ काइंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन. इट इज अ काइंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन. ओके, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स. ओके, सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर में ही इस ओपेरॉन मेथड को हम लोग देख सकते हैं. सो व्हाट आर द डिफरेंट ओपेरॉन मेथड वी आर नोस टिल नाउ? सो लैक ओपेरॉन, LAC, lac operon means lactose operon, tryptophan operon, arginine operon, histidine operon, and the valine operon. So especially in our NCERT syllabus, this lac operon is included. Okay, but don't worry, here in this class you will get some specialty. We will discuss the lac operon in this video, and in the next video my promise is that we will also discuss the tryptophan operon, which one is the part of the NEAT. Okay, so let's discuss the lac operon in detail. So before directly come into the lac operon, we have to discuss what are the different structures are there in the lac operon, or what does it mean, ये किस चीज से तैयार हुआ है. So lac operon के अंदर में हम लोग को कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स मिलेगा, कुछ ऑपरेटर जीन्स मिलेगा, कुछ प्रोमोटर जीन्स मिलेगा, और कुछ रेगुलेटरी जीन्स मिलेगा. ये नेम बहुत डिफिकल्ट है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो द स्ट्रक्चरल जीन्स, सो सपोज सोचो हम लोग को बिल्डिंग एक बनाना है, तो बिल्डिंग के लिए हम लोग को कुछ कुछ स्ट्रक्चर चाहिए. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स और व्हाट आर द मटेरियल्स वी नीड? We need stone chips, we need sands, we need iron rods, we need cement. So with these things we will prepare the entire building. तो यहाँ पे हम लोग जो लैक ओपेरॉन बनाएंगे, ये लैक ओपेरॉन भी कुछ सिस्टम से बना हुआ है. तो पहले हम बोले थे लैक ओपेरॉन इट्स अ सिस्टम और इट्स अ सेगमेंट ऑफ आवर डीएनए. तो इसके अंदर में क्या क्या चीज होगा? इसके अंदर में होगा कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स होगा, कुछ ऑपरेटर होगा, कुछ प्रोमोटर होगा, और कुछ रेगुलेटरी जीन्स होगा.
तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे, ऑपरेटर जीन्स क्या होगा इसको हम लोग जानेंगे, प्रोमोटर जीन क्या है और द रेगुलेटरी जीन्स क्या है। सो वेरी सिंपल वे, यहाँ पे हम एक स्ट्रक्चर ड्राइंग किए हैं। सो पी, व्हाट डज इट मीन्स पी? दिस प्रोमोटर जीन इज इंडिकेटेड बाय पी, promoter gene is indicated by P, whereas this I means it's your regulatory genes. I means it's your regulatory genes. Same way the O means it's your operator gene. So the operator gene here is indicated by the O, and here the lac Z, lac C, lac Y and the lac A, these all are the structural genes. So what are these things? These all are the structural genes. So what are the structural genes? So the structural genes are lac Z, lac Y and the lac A. Okay, these are the complete the structural genes, lac A. So these are the structural genes. So what are the, again, what are the structural genes? So these our 1, 2, 3, these are the structural genes. So the 4, it's our operator gene, and this 5, okay, and this is also we can indicate 5. So these all are promoter genes, and this I, the 6th one, it's our regulatory gene. So इस इतना सारा सिस्टम लेके, इतना सारा सेगमेंट लेके एक लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, है ना। अब देखो, जैसे हम लोग सीमेंट, एक बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, स्टोन चिप, सैंड यूज करते हैं, तो उसका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है ना। जैसे हम लोग देखेंगे सीमेंट हम लोग ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, एंकर आएगा, है ना। तो इट्स अ काइंड ऑफ एडहेसिव नेट, बट वहां पे उस स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर को मोर स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर सैंड मिलाते हैं, स्टोन चिप्स मिलाते हैं, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर को स्टेबल होगा। सो सेम वे, इसी तरीके का लैक ओपेरॉन में भी इसी तरीके के कुछ कुछ सेगमेंट है, और ये सेगमेंट एक साथ में एक यूनिट के हिसाब में काम करता है। तो चलो और डिटेल्स हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ईच यूनिट इन डिटेल। ओके, सो पहले हम लोग इसको बढ़िया से जान लेते हैं। सो पहले हम लोग इसको आएंगे। सो द स्ट्रक्चरल जीन्स के अंदर में हम लोग क्या देखें, लैक ओपेरॉन के अंदर में हम लोग फिर से इस डायग्राम को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखे क्या है, इसमें हम लोग देखे हैं प्रोमोटर है, रेगुलेटरी जीन है, फिर प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, और फिर हम लोग के पास स्ट्रक्चरल जीन्स Z, स्ट्रक्चरल जीन्स Y एंड स्ट्रक्चरल जीन्स A है। तो यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे क्या, इसके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है ना। तो पहले हम लोग इसको जान लेते हैं। देखा जाए क्या है, यहाँ पे जो प्रोमोटर है, प्रोमोटर एक साइट है, प्रोमोटर एक साइट है। तो इस प्रोमोटर जो साइट होगा, इस प्रोमोटर साइट कुछ फंक्शन करेगा, है ना। तो इसका फंक्शन क्या होगा स्पेशली। फिर यहाँ पे जो रेगुलेटरी जीन है, इस रेगुलेटरी जीन का फंक्शन क्या होगा। फिर ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर जीन का क्या फंक्शन होगा, इस बार हम लोग इसको जानेंगे। सो स्पेशली हम लोग पहले शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल जीन से। जो स्ट्रक्चरल जीन से ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है। जो स्ट्रक्चरल जीन Z और लैक Z है, ये एक एंजाइम सिक्रेट करता है, दैट इज, लेट्स नेम इट एज अ एंजाइम, एंजाइम 1। ये एंजाइम 1 क्या है, एंजाइम 1 है अ सिंपल वे, इट्स योर बीटा galactosidase, okay, beta galactosidase। सो लैक Z क्या करेगा, एक एंजाइम सिंथेसिस करेगा, जो एंजाइम का नाम होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेस। इस बीटा गैलेक्टोसाइडेस का काम क्या है, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस सिंपल वे इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। सो क्या होगा, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, ये लैक्टोज को ब्रेक करने में मदद करता है। ओके, लैक्टोज को सिंपल वे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करने में मदद करता है। ओके, और तुम लोगों को पता है ये ऑलरेडी जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज होगा। ओके, it is useful for the respiratory system for the production of the energy currency of the cell, it's your ATP। तो स्ट्रक्चरल जीन्स लैक Z से क्या प्रोडक्शन होगा, एंजाइम 1। व्हाट इज द एंजाइम 1, इट्स योर बीटा गैलेक्टोसाइडेस। बीटा गैलेक्टोसाइडेस क्या काम करता है, लैक्टोज को
ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन करता है और later on this glucose it is useful for the production of the energy currency of the cell, that's nothing but our ATP. So let's move into the next structural gene, that's your LAC-Y. So this LAC-Y ये क्या करता है, this secretes enzyme 2. So what is the function of the enzyme 2? So this enzyme 2 actually it secretes permease enzyme. It secretes permease enzyme. So this permease enzymes कहां पे मिलेगा? Suppose हम लोग को ये बैक्टीरिया है, assume it, this is E. coli बैक्टीरिया, और E. coli बैक्टीरिया के सराउंडिंग में लैक्टोज है. जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो लैक्टोज भी E. coli बैक्टीरिया भी खाना खाएगा. So what is their food? Their food is the lactose. So ये लैक्टोज तो E. coli अपटेक करेगा ना, तो लैक्टोज को E. coli कैसे अपटेक करेगा? इसलिए ये जो E. coli है, E. coli का मेम्ब्रेन में ओके कुछ छोटा छोटा एंजाइम है, कुछ एंजाइम का नाम है परमेस. तो परमेस क्या करता है? सिंपल वे, इट हेल्प्स इन अपटेकिंग ऑफ लैक्टोज. इट हेल्प्स इन अपटेक ऑफ लैक्टोज. ओके, it helps in uptake of lactose. Very simple way. अब ये जो LAC-Z gene है, so this LAC-Z gene, so it secretes enzyme. This gene secretes enzyme number 3. So ये enzyme number 3 क्या है? That enzyme number 3 is your trans, very important, it's a trans acetylase. Trans acetylase. ये ट्रांस एसिटाइलेज क्या है? जब परमेस एंजाइम जब परमेस एंजाइम लैक्टोज को अपटेक करता है, दैट टाइम along with the lactose this permease enzymes also uptake some toxin. What I told, whenever the permease enzymes helps in uptaking of lactose, then along with the lactose this permease enzyme uptakes some toxin from the external medium to inside the E. coli bacteria. अब ये toxin that is very much dangerous, right? So that's why that toxin can be break down by the help of trans-acetylase. So that means what will be the function of the trans-acetylase? It will be helpful for the detoxification. It will be helpful for detoxifications. I hope so it's very much clear. Okay, so what is its functions? Its functions, it's that it helps in detoxification. Then now let's look into the another part of the LAC operon. So पहले हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे प्रोमोटर, यहाँ पे भी प्रोमोटर है, यहाँ पे भी प्रोमोटर है. So जहां पे प्रोमोटर होगा, in that particular area, जहां पे प्रोमोटर होगा, in that particular area, what will be happen? There will be actually presence of, or there will be actually binding of the RNA polymerase. जहां प्रोमोटर है वहां पे क्या बैठेगा और वहां पे क्या चीज बाइंड होगा? वहां पे बाइंड होगा RNA polymerase. So यहाँ पे प्रोमोटर के साथ किस चीज का बाइंडिंग होगा? यहाँ पे बाइंडिंग होगा RNAP. So the RNAP means it's your RNA polymerase. Okay, RNA polymerase. Very simple way. अब क्या होगा? This I, what will be the function of the I? So initially I already told you the I means the regulatory gene. So this regulatory gene, it's actually release. This regulatory gene, it's actually release the repressor. The regulatory gene is actually release the repressor. So what is this repressor? This repressor के मतलब है ये इस लैक्टोज ओपेरॉन को कंटिन्यू होने में रुकावट डालेगा. Okay, so what will be happen whenever this repressor, okay, if the repressor binds with the operator, if the repressor binds with the operator, ये repressor इस operator में जाके बैठ जाएगा. Suppose यहाँ पे हम लोग
रिप्रेसर को बिठा दिए। सो रिप्रेसर यहाँ पे बैठ जाएगा तो क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, ये जो लैक जेड, लैक वाई ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, इस जीन्स का जो ट्रांसलेशन होगा, ये ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, और इस जीन का ट्रांसलेशन नहीं होगा तो क्या होगा, यहां से जो एंजाइम 1, एंजाइम 2, एंजाइम 3 है, इसका भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर में हम लोग क्या जाने, यहाँ पे रेगुलेटरी जीन आई है, रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर फॉर्म करता है और रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बैठ जाता है। ओके, प्रोमोटर क्या करता है, प्रोमोटर का काम क्या है, प्रोमोटर का काम है आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बाइंड होगा, और लैक जेड, लैक वाई और लैक ए और स्ट्रक्चरल जीन्स का काम है डिफरेंट एंजाइम को सिंथेसिस करना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसके साथ और डिटेल्स चीज को हम लोग जानते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। ये इंड्यूसर क्या है? ओके, इंड्यूस जनरली हम लोग क्या जानते हैं, इंड्यूस मींस जो किसी भी चीज को करने में मदद करता है ना। सो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे इंड्यूसर, इस ओपेरॉन का नाम क्या है, वेरी सिंपल वे, इट्स अ लैक्टोज ओपेरॉन। सो यहाँ पे हम लोग इस ओपेरॉन का नाम लैक्टोज ओपेरॉन क्यों दिए हैं, स्पेशली ये जो इंटर ओपेरॉन मेथड है, ये मेथड इट इज इंड्यूस्ड बाय द लैक्टोज, सो इट इज इंड्यूस्ड बाय द लैक्टोज, सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलते हैं लैक ओपेरॉन। सो यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, इंड्यूसर है लैक्टोज, यहाँ पे इंड्यूसर है लैक्टोज। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सपोज द इकोलाई बैक्टीरिया है, यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज सोचो एक कल्चर मीडियम है, यहाँ पे कल्चर मीडियम में छोटा छोटा इकोलाई बैक्टीरिया है, कल्चर मीडियम में छोटा छोटा इकोलाई बैक्टीरिया है। सपोज हम लोग को भूख लगता है तो इकोलाई बैक्टीरिया को भी भूख लगा है, बट हम लोग मीडियम में लैक्टोज नहीं डाले हैं, तो लैक्टोज हम लोग मीडियम में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, इकोलाई बैक्टीरिया भी लैक्टोज को अपटेक नहीं करेगा। अब जब इकोलाई बैक्टीरिया लैक्टोज को अपटेक नहीं करेगा तब क्या होगा, सो दैट्स व्हाई हियर इट्स रिटेन in absence of inducer, that means in absence of lactose what will happen। तो जब मीडियम में इंड्यूसर नहीं होगा, ये जो रेगुलेटरी जीन है, ओके, तो रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, एक एमआरएनए प्रोडक्शन करेगा। सो जीन कैसे, जीन एमआरएनए को प्रोडक्शन करेगा, वेरी सिंपल है, तुम लोग जानते हो ऑलरेडी द इवेंट्स ऑफ सेंट्रल डॉगमा। ओके, यू ऑलरेडी नोइंग दैट द सेंट्रल डॉगमा, हम लोग क्या जानते हैं सेंट्रल डॉगमा में, सो द डीएनए से हम लोगों का डीएनए का प्रोडक्शन होगा, डीएनए से हम लोग को देखते हैं आरएनए का प्रोडक्शन होता है, और आरएनए से हम लोग जानते हैं प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा। सो जब डीएनए से डीएनए का प्रोडक्शन होता है तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से जब आरएनए का प्रोडक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एंड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से जब प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। सो यहाँ पे एक जीन है, सो द आई जीन, सो द आई जीन दे विल प्रोड्यूस एमआरएनए। सो कैसे प्रोडक्शन करेगा, वेरी सिंपल वे, बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से जरिए यहाँ पे क्या प्रोडक्शन होगा, एमआरएनए प्रोडक्शन होगा। फिर फर्दर क्या होगा, एमआरएनए फर्दर प्रोटीन प्रोडक्शन करेगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। सो ये ट्रांसलेशन के जरिए एक प्रोटीन प्रोडक्शन किया, दैट प्रोटीन वी कैन गिव इट एज अ नेम एज रिप्रेसर। अब रिप्रेसर जब प्रोडक्शन हो जाएगा, देन रिप्रेसर will come and it will bind with operator, repressor will come and repressor will bind with operator। अब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा तो अब क्या होगा, वेरी सिंपल वे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं प्रोमोटर के साथ किसका बाइंडिंग होता है, प्रोमोटर के साथ बाइंडिंग होता है हम लोग का आरएनए पॉलीमरेज, राइट राइट। सो हियर आरएनएपी। अब ओरिजिनली यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ओरिजिनली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ बैठा है, और आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, यहाँ पे स्लोली आरएनए पॉलीमरेज जितना भी स्ट्रक्चरल जीन्स है इसको रीड करेगा, और रीड करके
बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पे एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3 का प्रोडक्शन करेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दैट द रोड, यहाँ पे सिंपल वे जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर का प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इस ऑपरेटर एरिया ब्लॉक करके रखा है कौन? एक रिप्रेसर ब्लॉक करके रखा है। अब जब ये रिप्रेसर ऑपरेटर को ब्लॉक करके रखा है तो क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पे है, उस जीन से भी एंजाइम 1 और एंजाइम 2 और एंजाइम 3 इस चीज का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, इस चीज का भी प्रोडक्शन नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे in absence of inducer this operon will be off, this operon will be off। क्लियर? ओपेरॉन काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कब फंक्शनल होगा, जब ये सब स्ट्रक्चरल जीन्स फंक्शनल होगा तब हम लोग बोल सकते हैं ये ओपेरॉन काम कर रहा है। बट यहाँ पे हम लोग देखे क्या, आरएनए का, आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता कौन ब्लॉक कर दिया? ऑपरेटर ब्लॉक कर दिया, ऑपरेटर में बैठा हुआ रिप्रेसर ब्लॉक कर दिया है। अब जिसके कारण में जितना भी स्ट्रक्चरल जीन्स है उसका रोड ब्लॉक्ड। ओके, सो दैट इज इन केस ऑफ द इंड्यूसर। So let's see what will be happen if in the media lactose is present. So suppose यहाँ पे इंड्यूसर प्रेजेंट है, सो इंड्यूसर मतलब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, तब क्या होगा? सो मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? सपोज हियर इज द इंड्यूसर, इंड्यूसर इट्स योर लैक्टोज, है ना। सो सपोज इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इकोलाई बैक्टीरिया है, छोटा छोटा इकोलाई बैक्टीरिया है, और नाउ हम लोग मीडियम में लैक्टोज दिए हैं, है ना। तो जब मीडियम में लैक्टोज होगा तो क्या होगा, लैक्टोज एक इंड्यूसर के हिसाब में काम करेगा, और रिप्रेसर से जो भी एमआरएनए बना है, रेगुलेटरी जीन से जो भी एमआरएनए बना है एंड एमआरएनए से जो भी रिप्रेसर बना है, ये इंड्यूसर जाके रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा। जब whenever the lactose binds with the repressor, whenever the lactose binds with the repressor, makes the repressor inactive. This is a very crucial statement. Whenever the lactose binds with the repressor, makes the repressor inactive. अब ये repressor inactive हो जाएगा तो क्या होगा, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड कर पाएंगे? ऑपरेटर के साथ डेफिनेटली बाइंड नहीं कर पाएंगे। अब ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड कर पाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो प्रोमोटर के साथ हम लोग का आरएनए पॉलीमरेज बैठा हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता भी आप कोई नहीं रोक रहा है, रास्ता भी आप कोई नहीं रोक रहा है। अब इसको क्यों रास्ता नहीं रोक रहा है कोई? बिकॉज यहाँ पे लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड हो चुका है ऑलरेडी। अब जब लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएंगे तो क्या होगा, आसानी से द रिप्रेसर इट विल बिकम इनएक्टिव, एंड व्हेनेवर द रिप्रेसर विल बिकम इनएक्टिव, द रिप्रेसर विल बी अनेबल टू बाइंड विद द ऑपरेटर, एंड इफ द ऑपरेटर एरिया इज vacant, then very simply, okay, very easily the RNA polymerase will read or will translate these structural genes. Okay, how? यहाँ पे RNA polymerase slowly जितना भी structural genes है, इस structural genes को सबसे पहले through the help of the transcriptions it will produce the different types of the mRNA. So suppose यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं, LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A। तो LAC-Z का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो इसलिए क्या प्रोडक्शन होगा, LAC-Z mRNA। LAC-Y का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या प्रोडक्शन होगा, LAC-Y mRNA। और LAC-A का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या प्रोडक्शन होगा, LAC-A mRNA। अब जितना भी LAC-Z mRNA, LAC-Y mRNA एंड LAC-A mRNA, जितना भी mRNA प्रोडक्शन हुआ है, सारे mRNA को क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। अब जैसे ट्रांसलेशन होगा क्या होगा, तो जितना भी mRNA बना था, LAC-Z mRNA, LAC-Y mRNA, LAC-A mRNA, सारे mRNA से किस चीज का प्रोडक्शन होगा, प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। क्या क्या
प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, लैक जेड एमआरएनए से प्रोडक्शन होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, लैक वाई एमआरएनए से प्रोडक्शन होगा पारमीएस का, लैक ए एमआरएनए से प्रोडक्शन होगा ट्रांस एसिटाइलेज का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इंड्यूसर मीडियम में प्रेजेंट होता है तो वेरी सिंपल वे सारे ओपेरन मेथड क्या होगा, ऑन हो जाता है ना, सारे ओपेरन मेथड ऑन हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई जब एक मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होगा देन द ओपेरॉन विल बी ऑफ in the absence of inducer. Whenever the inducer is absent in the medium, so the operon is off, and whenever the in the medium inducer is present, then the operon will be switched on. Is that clear? So let's discuss into more detail of negative control of lac operon. तो हम लोग लैक ओपेरॉन को नेगेटिव कंट्रोल क्यों बोलते हैं? सो वेरी सिंपल, हम लोग जितना भी डिस्कशंस किए हैं इससे जरिए हम लोग क्या जान पाए। सो व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस वी गॉट? सो whenever in the medium lactose is absent, whenever in the medium the lactose is absent, then क्या होगा? Very simple way, the repressor will bind with ऑपरेटर, है ना? फिर ऑपरेटर के साथ जब बाइंड हो जाएगा तब नेक्स्ट में क्या होगा? द वेरी सिंपल वे, आरएनए, ओके, और आरएनए पॉलीमरेज विल कैन नॉट मूव। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा तो आरएनए मूवमेंट नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। सो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स ओके, इट विल बी एब्सेंट। अब जब ये एब्सेंट होगा तो हम लोग क्या होगा? ओपेरॉन इज ऑफ, है ना? अब यहां पे नेगेटिव कंट्रोल हम लोग क्यों बोल रहे हैं? देखो सिंपल वे, जब एक मीडियम में हम लोग देख रहे हैं, मीडियम में जब ओपेरॉन नहीं प्रेजेंट हो रहा है और मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो वेरी सिंपल वे हम लोग देख रहे हैं ओपेरॉन ऑफ हो जाएगा। क्यों? इंड्यूसर जो है, इंड्यूसर इज योर लैक्टोज। ये मीडियम में हम लोग देख रहे हैं लैक्टोज जब एब्सेंट है कंप्लीटली, then the operon is off, then the operon is off. That's why this is your negative control of lac operon. जब हम लोग फिर से मीडियम में क्या कर रहे हैं, मीडियम में हम लोग लैक्टोज पुट कर रहे हैं, जब हम लोग मीडियम में लैक्टोज पुट कर रहे हैं और इंड्यूसर पुट कर रहे हैं, तब हम लोग क्या देख रहे हैं? वेरी सिंपल वे, द ओपेरॉन विल बी ऑन, है ना? So that's why it is actually called as your negative control. That's why it's called as your negative control. I hope so it's very much clear. Okay, so let me erase it, then we'll discuss more detail on our lac operon, है ना? जान लेते हैं और क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। सो नेगेटिव कंट्रोल ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो हम लोग क्या जानते हैं? द लैक ओपेरॉन, इट इज एक्चुअली इंड्यूसिबल सिस्टम, ओके, इट इज एक्चुअली इंड्यूसिबल सिस्टम। इंड्यूसिबल सिस्टम के मतलब क्या है? हम लोग देख रहे हैं ओपेरॉन जनरली ऑफ है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। अब इसको ऑन कौन कर सकता है? इस ओपेरॉन को ऑन कौन कर सकता है? वेरी सिंपल वे, हम लोग देख रहे हैं मीडियम में जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, ओके, व्हाट इज दिस लैक्टोज? लैक्टोज इट्स योर इंड्यूसर। जब ये इंड्यूसर प्रेजेंट होगा देन ऑटोमेटिकली द ओपेरॉन विल बी स्विच्ड ऑन, ओके।
अब इसको हम लोग नेगेटिव कंट्रोल क्यों बोले, हम लोग देख रहे थे मीडियम में जब लैक्टोज एब्सेंट था, ओके, और इंड्यूसर एब्सेंट था, then on that time the operon was off. That's why we call them as negative control of lac operon. अब इंसेटिव बुक में तो इतना तक डिस्कशन ऑलरेडी है, बट इसके बाद भी लैक ओपेरॉन का भी पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है। चलो हम लोग इसको भी जान लेते हैं। सो लेट्स मूव इनटू द पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन। सो द पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन के लिए जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन होता कहां पे है। तो एक स्पेशल टाइप्स का प्रोटीन है, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं कैप। What is the cap? Cap means it's your catabolite activator protein. Catabolite activator protein. ये जो कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है, इस कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन का काम क्या है, इसको हम लोग जानेंगे। हम लोग स्पेशली जब एक इकोलाई बैक्टीरिया होता है तो उसका सराउंडिंग में जो भी मीडियम होता है, उस मीडियम में ग्लूकोज भी ज्यादा हो सकता है, लैक्टोज भी ज्यादा हो सकता है ना। और एक स्पेशल तरीके का एक प्रोटीन होता है दैट इज कॉल्ड एज CAMP। व्हाट इज द CAMP? द CAMP मींस इट्स योर साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है ना, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये जो इकोलाई है सराउंडिंग में, इस इकोलाई का सराउंडिंग में इस तरीके का प्रोटीन भी रहता है। ओके, सो जनरली क्या होगा, जो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये जाके CAP के साथ बाइंड हो जाता है। जब CAP के साथ बाइंड हो जाता है तब इट प्रोड्यूसेस CAMP-CAP कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये कॉम्प्लेक्स का क्या काम करेगा, दिस कॉम्प्लेक्स इट विल सिट विथ आवर प्रोमोटर साइट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पे प्रोमोटर होगा, यहाँ पे आइजिन होगा, यहाँ पे फिर प्रोमोटर है, यहाँ पे फिर ऑपरेटर है, यहाँ पे Z, यहाँ पे Y एंड यहाँ पे A। तो ये जो CAMP कैप कॉम्प्लेक्स, तो हम लोग क्या जानते थे ऑलरेडी, यहाँ पे जाके जो रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर किसके साथ बाइंड होता है, दैट वी नो ऑलरेडी। द रिप्रेसर कम्स एंड सिट विद द ऑपरेटर, राइट। सो जब रिप्रेसर ऑपरेटर के साथ बाइंड होता है तब लैक ओपेरॉन क्या था, ऑफ था या ऑन था? यस, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। जो जब रिप्रेसर उसके साथ ऑपरेटर के साथ बाइंड हो रहा था तब हम लोग देखे और जाने जो ओपेरॉन है, ओपेरॉन ऑफ हो गया। तो यहाँ पे जो रिप्रेसर है, ये रिप्रेसर किस चीज से बना है, दैट रिप्रेसर इज मेड अप ऑफ CAMP कैप कॉम्प्लेक्स, है ना। अब इस ऑपरेटर के साथ में भी क्या है, हम लोग देखे हैं RNA पॉलीमरेज भी बाइंड है ना, यहाँ पे RNA पॉलीमरेज भी बाइंड है। अब यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे इस पॉजिटिव कंट्रोल में, है ना, पॉजिटिव कंट्रोल में जब CAMP कैप कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर के साथ बाइंड होगा, then only the RNA polymerase will read these structural genes, and after reading the structural genes by the process of transcription followed by translation, they will produce enzyme. The RNA polymerase will produce the all enzymes. Is that clear? So यहाँ पे हम लोग क्या देखे, यहाँ पे ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर में CAMP कैप कॉम्प्लेक्स बैठा, इसके लिए RNA पॉलीमरेज एंजाइम्स प्रोडक्शन कर पाए। तो इसके लिए क्या है, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कंट्रोल। सो इट मींस पॉजिटिव कंट्रोल्स मींस इट्स योर switching on, okay, of operon, switching on of operon,
by activity of CAMP कैप कॉम्प्लेक्स, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स, ये ओपेरॉन कब ऑन हुआ? दिस ओपेरॉन इज स्विच्ड ऑन when this CAMP cap complex sits with the operator. So as the CAMP cap complex sits with the operator, then only RNA polymerase able to bind with the operator, or RNA polymerase will able to translate these structural genes for the formation of enzymes. So that's why यहाँ पे क्या देखे, यहाँ पे कैप कॉम्प्लेक्स बैठा, जिसके कारण में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोडक्शन कर पाए. दैट्स व्हाई दिस इज द पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ लैक ओपेरॉन. That's why this is the positive control of lac operon. Is that clear? So hope so you have enjoyed this lecture today, and if you like this lecture, so do not forget to subscribe your favorite biome channel, and try to share along with your friends also. Okay, so thank you, and as I promised you, in the next video we will be meeting with the next another operon method. That's your tryptophan operon. Till then, take care, bye, and stay safe. Thank you.